Good morning, friends. Now, today, the conclusive lecture of real numbers. Yes, today we are going to finish the real numbers. Applications of Euclid's lemma. We are starting with the applications of Euclid's lemma. चलिए start करते हैं. Exactly, the first application of Euclid's lemma is to find the HCF of two numbers. How to find the HCF of two numbers? Using Euclid's lemma. See, I am just solving a question. Find the HCF of, suppose, 1176 and 216 using Euclid's lemma. Okay, find the HCF of, this is suppose the question, ये क्वेश्चन है आपका. That is very simple, बहुत आसान क्वेश्चन है. चलिए, we are just starting the solution. Using Euclid's lemma. How to use the Euclid's lemma in that? See, solution as we know, given that 1176 and 216, where 1176 is greater than 216. Why can't we take, using the lemma, it is A and it is B? Suppose we are taking this as A and this as B, then we know that A is equal to BQ plus R. This is the Euclid's algorithm. Okay, now that we are just taking 1176 and as 216. So what to do is, you will have to just divide 1176 by 216. Okay, so as I think 5 the 1080 you will be getting. Okay, so what we get is 6, then 176, so 96 will be the remainder. So you can write, so using Euclid's lemma, 1176 is equal to, this is what, 216 multiplied by 5 plus 96. Okay, this is the first step of solving, of finding the HCF through Euclid's lemma. Now you will have to establish the same relationship between 216 and remainder. Okay, the divisor and remainder will have to apply the same. Means again we'll just divide 216 using by 96. So 96 two times, you know very well, you will be getting 192, 192. So the remainder will be 24. So now this can be written as, this 216 can be written as 96 multiplied by 2 plus 24. Here the remainder is 24. This is the second step of the question. Now 96 and 24 both will be just applied as it is. So again we need to write 96 we need to write 24. So 24 for the, you know very well, 24 for the 96 plus 0. There will be no remainder when 96 will be divided by 24. Is it clear? So these are the three steps we have written by using Euclid's algorithm. Now conclusion. It is the time of conclusion. As I think everyone understood, you can utilize the Euclid's algorithm. You know very well for two numbers. Very first we have just applied that on 1176 and 216.
we have written in that way. Okay, then what was the remainder? This was just taken with 216, 96 multiplied by 2 plus 24. Now 96 and 24 we have written in the same way. Till the time will not get the remainder 0, will just continue the process. Till the time will not get 0, will continue the process. मेरी बात को गौर से सुनिए, जब तक हमको रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा हम प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहेंगे. दिस इज जस्ट द नाउ यू गॉट सॉल्यूशन. अभी कंक्लूजन का टाइम है कि क्या करेंगे हम. व्हाट इज द कंक्लूजन? सो दैट्स वेरी इजी, बहुत आसान है कंक्लूजन. देखिए, नाउ यू कैन राइट द एलसीएम ऑफ HCF, sorry. So HCF of 1176, very first we should start from the last. 24 and 96. 24 and 96 is equal to 24. The LCM of 24 and 96 is 24. HCF. The HCF of 96 and 216 is also 24. The HCF of 216 and 1176 is also 24. That's why we are using Euclid's lemma. Why? Because by using that prime factorization you determined only the HCF of the particular two numbers, but here you can see that you have determined the HCF of the series of numbers, series of the pairs you have determined exactly the HCF of 3 pairs here. Okay, definitely which are interrelated, but that is the speciality of the Euclid's lemma. I think you understood the solution. That's very simple. This is your answer, perfect answer. Okay, so you must note down that by just pausing that video. Okay, again I am making you understand. एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ. 1176 216 का एलसीएम निकालना था हमको. We know that very well. 1176 is greater than 216. We applied Euclid's algorithm. 1176 is equal to 216 into 5 plus 96. Now 216, 96 we have applied the same algorithm. 216 is equal to 96 into 2 plus 24. Now 24 and 96 we have applied the same algorithm. We got 0, we stopped the process. हमको 0 मिल गया, हमने प्रोसेस को स्टॉप कर दिया. एंड यहाँ हमने कंक्लूजन लिखा है. देखिए कंक्लूजन बहुत स्पेशल है, बिकॉज प्रीवियसली व्हेन यू आर जस्ट फाइंडिंग द HCF इन क्लास 6th आपको केवल 2 नंबर का HCF मिलता था. यहाँ पूरी सीरीज का HCF मिल रहा है. ओके, दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ यूक्लिड्स लेमा. सो आई होप यू अंडरस्टूड. दैट्स ग्रेट. नाउ we need to know the linear combination. This was the first use. First application क्या था? First application था to find HCF. मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप ध्यान रखें. हाँ, second HCF है, second application है linear combination. अब देखिए ये linear combination क्या है exactly. Again we are solving the same kind of question. Process same है linear combination में, केवल आपको यहां से आगे बढ़ाना पड़ेगा. ठीक है, तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन लेके करेंगे ताकि एक क्वेश्चन और हो जाएगा साथ में, है ना. राइट द, ये क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आता है. दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एमपी बोर्ड हो या सीबीएसई हो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस पे बेस्ड. चलिए, नाउ write write 408 and 765 408 and 765 in a linear combination of their HCF. The HCF of this will be written in linear combination of AS. Linear combination of their of the numbers of their HCF. Yes, this may be the question. Now how to solve it? कैसे solve करना है क्वेश्चन को? देखिए, same, पहले हमको same process करनी है. Solution, very first we need to find the HCF.
using the Euclid's lemma. चलिए करते हैं. Given that two numbers 765 and 408, where 765 is greater than 408, so using Euclid's algorithm or lemma, we can write lemma 765 is equal to 408 into 1 plus, you may just estimate 408, definitely when it will be doubled it will be 816, so it is less than that, hence we are writing 408. On dividing, instead of dividing we are writing directly. 408 must be subtracted from that, so 408, 765 will be divided by 408. देखिए मैं एक बार करके बताता हूँ आपको. 408, now 7 8 15, carrying over 1 5 6 and 357. now what to do, ये जो प्रोसेस है ये ऐसा होता है कि 408 will be here. now 357 1 357, so here it will be 51. now 51 for 51, this 357 will become the divisor, so 51 6 are 307 we can do as I think. Yes, it is. So 51 is the HCF of both. How will we write this? Plus 357. Now the process for 408 and 357. So 408 will be written as 357 into 1 plus 51. Okay. Now 357 will write as 357 is equal to 51 into 7 plus 0. जहाँ 0 आ गया प्रोसेस खत्म. So this is equation number 1, this is 2 and this is 3. Now what is the linear combination that I am just explaining? So linear combination. What is linear combination? HCF of n1 n2 is equal to, suppose n1 and n2 are two numbers, so HCF of n1 and n2 can be written as n1x plus n2y. This is the linear combination to find the value of x and y. So we are just explaining, means 51 we'll have to write in the form of 365 and 408. Before that we should write answer. So HCF of 765 and 408 is equal to 51. Now we are just using these equations. Okay, now 51 is here as I think. So 51 can be written as 408 minus 357 from equation 2. See, from equation 2, हमको 51 को 765 और 408 की टर्म्स में लिखना है. तो वी आर राइटिंग दैट 51 plus 357 into 1 is equal to 408. Okay, now this 357 we are taking there, so 51 will be equal to 408 minus 357. Is it clear? Now this is equation number 4. अब देखिए, from equation 1 we are determining the value of 357. From equation 1 357 का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से. 765 is equal to 408 into 1 plus 357. तो 357 को हम यही रखते हैं. 765 minus 408. Okay, so the value of 357 we are keeping in 4. So from equation 4
एंड 5। देखिए ये इन इक्वेशंस को यूज करके हमको HCF ऑफ both the numbers must be expressed in form of both the numbers, दोनों नंबर के फॉर्म में हमको 51 को लिखना है। तो वो हम कर रहे हैं, हमने इक्वेशन नंबर 2 लिया, इक्वेशन नंबर 2 लेके 51 का वैल्यू डिटरमाइन किया इन टर्म्स ऑफ 408 एंड 357। 357 was not the given number was 765, तो 357 को हटाना है यहाँ से। 357 इक्वेशन 1 में है, यहाँ से हम देखते हैं 765 was written as 408 into 1 प्लस 357। यहाँ से 357 को वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए इसको डिस्प्लेस किया, ये आ गया 765 माइनस 408 इज इक्वल टू 357। नाउ ये 357 का वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। क्या किया, 51 इज इक्वल टू 408 माइनस 765 माइनस 408, बस आप सॉल्व कर लीजिए। 408 ब्रैकेट ओपन किया माइनस 765 प्लस 408, ये 408 को ऐड नहीं करना है, इसको लिखेंगे हम 2 टाइम्स 408 माइनस 1 टाइम्स 765 इज इक्वल टू 51। दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर है। देखिए यू कैन कंपेयर दैट कि n1x प्लस n2y, यहाँ पे x क्या है, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -1 you can take. Is it clear? So this is the linear combinations of two numbers we have expressed. See, थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये पता नहीं क्या किया है, बहुत सिंपल है। मैंने इक्वेशंस को यूज किया है, इन तीनों इक्वेशंस को यूज करके इस 51 का वैल्यू निकाला है इन टर्म्स ऑफ 765 एंड 408। 765 और 408 की टर्म्स में मैंने 51 का वैल्यू निकाला है। इट्स वेरी सिंपल, बहुत आसान है, आपको देखना है। देखिए प्लीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड, पॉज द वीडियो एंड जस्ट नोट डाउन द थिंग। ओके, सो एज आई थिंक यू अंडरस्टूड दैट। नाउ वी आर जस्ट solving the question based on the LCM and HCF। LCM और HCF पे बेस्ड क्वेश्चन हम करते हैं अब। ओके, सो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। LCM और HCF पे बेस्ड क्वेश्चंस जो भी होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपके दोनों यूक्लिड्स लेमा के एप्लीकेशंस कंप्लीट हुए। नाउ सी, अब यहाँ देखिए LCM और HCF के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती है LCM और HCF पे बेस्ड, उसमें ध्यान रखिए। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करके बता रहा हूँ वर्ड प्रॉब्लम जो बहुत सिंपल है। देखिए, सपोज अ क्वेश्चन इज फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by 6, 15 and 18 leaves remainder 5 in each case. Leaves remainder 5 in each case. देखिए, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके पास, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में LCM निकालना है या HCF। तो एनी वर्ड, क्वेश्चन में एक वर्ड ढूंढिए, देयर विल बी अ वर्ड मैक्सिमम और मिनिमम। एक वर्ड ऐसा रहेगा जो मैक्सिमम का सिनोनिम्स रहेगा या मिनिमम का सिनोनिम्स रहेगा, हमको नंबर फाइंड करना है। तो ये नंबर आ गए यहाँ लिस्ट, ये वर्ड फाइंड करना है। फाइंड द लीस्ट नंबर। लीस्ट नंबर मीन्स हमको स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए। लीस्ट नंबर क्या होता है, LCM होता है, मतलब हमको यहाँ पे LCM निकालना है, दैट्स इट। ओके, सबसे पहला हमको ये डिटरमाइन करना है वर्ड प्रॉब्लम में कि कहीं पे मैक्सिमम वर्ड का कोई सिनोनिम है या मिनिमम वर्ड का सिनोनिम है। अगर मैक्सिमम वर्ड का सिनोनिम है तो हम HCF निकालेंगे, और मिनिमम वर्ड का सिनोनिम है तो हम LCM निकालेंगे। ध्यान रखिए मेरी बात, अगर मैक्सिमम वर्ड जैसा कोई वर्ड है तो हम HCF फाइंड करेंगे क्वेश्चन में, और मिनिमम वर्ड जैसा कोई वर्ड है तो हम LCM फाइंड करेंगे। तो यहाँ लीस्ट वर्ड है
तो हम एलसीएम फाइंड करेंगे। पहली जंग हमने यहीं पे जीत ली है। ओके, क्वेश्चन आपका आधा हो गया। वेल बिगन इज हाफ डन, ऐसा कहा जाता है। तो आपने आधा कर लिया है ना। गिवन दैट थ्री नंबर्स आर गिवन 6, 15 and 18. So LCM of these, इन नंबर्स का LCM निकालिए। 6 प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करते हैं। 15, 18, you know 2, 3, 15, 9. Now we'll divide by 3, 3, 1, 5 and 3. Again by 3, 1, 5, 1. Now by 5, 1, 1, 1. So LCM is 2 into 3 into 3 into 5. So 9 5s are 45, 2s are 90. 90 is the number. But what they are saying, the statement क्या है कि which leaves remainder 5. अब ये तो 90 से तो बिल्कुल कंप्लीटली डिविजिबल है। रिमाइंडर 5 कब छोड़ेंगे? जब 90 से 5 को 8 कर दिया जाएगा, है ना। सो द लीस्ट नंबर which when divided by 6, 15 and 18 leaves remainder 5 is equal to LCM plus 5 means 90 plus 5, 95. So 95 is the required number. 95 is required number. ये आपका आंसर हो गया। ये आपने आंसर, you have written the answer. That is all in the question. See, that is the simplest question. इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और स्टूडेंट्स जनरली वर्ड प्रॉब्लम देख के थोड़ा सा फियरफुल होते हैं। डरिए नहीं, वर्ड प्रॉब्लम ज्यादा सिंपल है। एग्जैक्टली ये देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन है इसका। एंड दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन फॉर 4 मार्क्स। 4 मार्क्स आपके पक गए अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो। इज इट क्लियर? प्लीज नोट डाउन दिस फास्ट। इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए। नाउ वन मोर क्वेश्चन आई एम सॉल्विंग फॉर यू। एक और वर्ड प्रॉब्लम, ये तो वर्ड प्रॉब्लम नहीं था, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। सीबीएसई में आपने सुना होगा एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन द सेंस रियल लाइफ बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स अगर हम सॉल्व करते हैं सो दैट इज कॉल्ड द एक्सपीरियंशियल लर्निंग। चलिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। 3 टैंकर्स वी आर हैविंग। 3 टैंकर्स कंटेन 3 टैंकर्स कंटेन्स 3 टैंकर है हमारे पास, है ना। 403 लीटर, 435, 403 लीटर, 435 लीटर एंड 465 लीटर डीजल एंड 465 लीटर डीजल। ओके, इतना डीजल इनमें है रेस्पेक्टिवली। ओके, टैंकर 1 containing 403 लीटर डीजल, टैंकर 2 435, टैंकर 3 465 लीटर डीजल है इनमें, है ना। नाउ फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी। मैंने क्या कहा था अभी? फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी। मेरे ख्याल से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल गया। याद करिए मैंने क्या कहा था? वेल बिगन इज हाफ डन। ओके, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी of the container that can measure the diesel, that can measure the diesel of the 3 containers exact number of times of the 3 containers exact number of times. What
what the question is. Try to understand the question. Question समझने की कोशिश कीजिए. 3 tankers है हमारे पास. Suppose this is the tanker number 1. It is having 403 liter diesel. Second, 435 लीटर डीजल. देखिए इससे थोड़ा सा बड़ा है ये, इसको मैं और स्मॉल कर देता हूं ताकि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस आप कर पाए. ओके, एंड नाउ 465 लीटर. सो इट इज 465 लीटर. ये है आपका टैंकर नंबर 1, टैंकर नंबर 2, टैंकर नंबर 3. अब देखिए we need to have a bucket suppose. okay, bucket से हम suppose इसमें से डीजल निकाल रहे हैं, है ना. तो there should be a bucket which can be completely, very first we can determine completely all the पूरा डीजल हम इससे निकाल सकते हैं, है ना, एक bucket. okay, and that should be the bucket जिससे कि एक भी लीटर इसका बचेगा नहीं, सबका पूरा डीजल बाहर निकलेगा. और दैट बकेट विल ऑलवेज बी कंप्लीटली फिल्ड, हमेशा कंप्लीटली फिल्ड रहेगी. नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ बकेट में भी डिफरेंट. ओके, तो उस बकेट का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना हो सकता है. मैंने तुमको बताया था कि एक वर्ड ऐसा ढूंढना पूरे क्वेश्चन में. यू नीड टू सर्च अ वर्ड इन द क्वेश्चन विच इज सिनोनिम ऑफ आइदर मिनिमम और मैक्सिमम. यहां वो वर्ड है मैक्सिमम. मीन्स हमको नंबर्स का HCF निकालना है. तो क्वेश्चन डन. सॉल्यूशन देखिए यहां पे सॉल्यूशन गिवन 3 tankers of capacity T1 is equal to 403 liter, T2 is equal to 435 liter, T3 is equal to 465 liter. So the maximum capacity bucket or container will be HCF of the capacity of tankers. okay, this will be the capacity of the container. HCF निकालना है 403, 435, 465 का. वेरी फर्स्ट 465 एंड 435 का HCF निकालते हैं. सो यूजिंग ये बिटा दूं मैं डेफिनेटली. आई होप यू अंडरस्टूड द थिंग्स. आपको समझ में आ गई होगी चीजें, क्वेश्चन क्या है एग्जैक्टली. So I am just making it clean. Now we'll apply the Euclid's lemma for finding the HCF of 435 and 465 very first. So 465 is equal to 435 into 1 plus 30. Definitely you know very well. Now 435 is equal to 30 into, okay, now it is 43 means 15 3s are 45. so 450 तो होगा नहीं. so now 14 3s are 42. okay, so 30 into 14 420 plus 15. okay, now we need to determine the HCF of 30 and 15. so 30 is equal to 15 into 2 plus 0. so HCF of 465 and 435 is equal to 15. Now we can determine the HCF of 15 and 403. okay, now HCF of 15 and 403. now 403 can be written as 15 into definitely 403 must be divided by 15. so 15 2s are 30, 10 3, 15 6s are 90, so 13. so 15 into 26 plus 13. so 15 is equal to 13 into 1
13 plus 2, so 13 is equal to 2 6 plus 1. So the HCF of, okay, so 2 is equal to 1 into 2 plus 0 means HCF of 403 and 15 is equal to 1. So 1 the 1 liter only will be the measurement of the container, which will be just definitely 465 times, 435 times and 403 times we will take out it. Is it clear? इतना maximum 1 है, in the sense HCF of all the three number is 1. Is it clear? So that is all. As I think ये hence हमको आंसर में लिखना है, hence we need to take the container of capacity of 1 liter. Is it clear? 1 liter कैपेसिटी का कंटेनर हमको चाहिए. Is there any doubt? कोई डाउट है आपको? That is all. ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया. बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी. हमको क्वेश्चन में आपको सबसे पहले मैक्सिमम और मिनिमम ऐसा वर्ड फाइंड करना है. लीस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ग्रेटर हो सकता है. So that as you find that question word, you will determine the solution. Is it clear? तो I hope कि you understood that. आपको समझ में आ गया होगा ये. It was one more application, one more question of related to HCF and LCM. तो HCF और LCM का क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए किए. I hope you understood that. आपको समझ में आया होगा. As I think now from here we did all the questions of the related to this chapter, है ना. Try to understand one thing. अब आप एक चीज समझने की कोशिश करें. कुछ फॉर्मूले हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, वो जरूर लिखें. Suppose you are having n1 and n2 two numbers. तो what is the relation between HCF and LCM of two numbers? HCF and LCM of two numbers. यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं बात कर रहा हूँ only two numbers की. This formula is not applicable for the numbers more than 2. n1 into n2 is equal to HCF of n1 n2 multiplied by LCM of n1 n2. Please note down that formula. This is very important formula. इसके अलावा है ना, LCM and HCF of fractions. अगर आपको fractions का LCM HCF निकालना है तो क्या करेंगे? देखिए, LCM of A upon B and C upon D. सपोज ये दो fractions हैं. So ये हो जाएगा LCM of A and C upon HCF of B and D. ये फॉर्मूला है. Is it clear? Similarly, अगर आप HCF की बात कर रहे हैं तो HCF of A upon B C upon D is equal to HCF of A and C upon LCM of B and D. Please note down that fast. इसको नोट कर लीजिए. That is the simplest question, simplest formula. Okay, I think you have written. Now we are just revising that entire chapter. Is it clear? Please note down that just by pausing, and you need to solve the question based on the formula. Okay. Now from here, यहाँ पे आपका पूरा NCERT रियल नंबर फिनिश हो गया. अभी एक बात समझिए, बहुत सारे बच्चे शिकायत करेंगे. आप लोगों के मन में ये होगा कि सर स्टार्ट करेंगे NCERT क्वेश्चन नंबर 1 and sir will solve the question on the board and yes we'll just copy down it and in the same way we'll just study. ऐसा आज तक पढ़ते आए हैं. अभी एक बात समझिए कि that will be teaching, वो है टीचिंग पार्ट. ओके, हमको कंफर्म करना है लर्निंग. इज इट क्लियर? मैंने आपको सारे सॉल्यूशंस करना सिखा दिए हैं. आप कॉन्फिडेंट हो जाइए कि आपको सारे क्वेश्चंस आते हैं. अब
एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस निकालिए एंड वन बाय वन एक्सरसाइजेस सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। कहीं प्रॉब्लम आती है प्लीज कॉल मी एट द सेम टाइम, आई विल मेक यू हेल्प। ओके, पढ़ने का ये तरीका कि हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ऑर्डर बाय ऑर्डर सॉल्व करवाते जाएं टीचर से, नोट करते जाएं, क्लास वर्क कॉपी बना लें, दिस इज नॉट गुड। प्लीज 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 कॉन्सेंट्रेट ऑन लर्निंग। आप आज तक यही करते आए हैं शायद, तो लर्निंग नहीं हो रही है, वी आर नॉट लर्निंग द थिंग्स। हम क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं सीख रहे हैं, हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखना है। हमको एक क्वेश्चन नहीं सीखना है, हमको उस पैटर्न को सॉल्व करना सीखना है। अगर आप उस पैटर्न को सॉल्व करना सीख पाए तो आई होप कि आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग होगी और आपको लर्निंग होगी, आपको चीजें आगे समझ में आएगी। यू विल बिकम अ बेटर स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो प्लीज आप स्टार्ट करें सॉल्व करना। यहां मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं। सबसे पहले आपको रियल नंबर समझने की जरूरत है। वंस अगेन आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग हियर द रियल नंबर्स। ये सिर्फ रिवीजन है। ओके, रियल नंबर्स क्या होते हैं, दिस वाज द नेम ऑफ द chapter and at last I am just writing the definition. See, real number is a value of continuous real number is a value of continuous quantity that can be represent on a distance along a line. That line may be of infinite distance. Okay, that adjective very first was used by रेने डेस्कार्टेस। सबसे पहले ये वर्ड रियल जो है ये रेने डेस्कार्टेस ने यूज किया था आफ्टर डिस्कवरिंग इन्वेंटिंग द इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, इमेजिनरी नंबर जब उन्होंने बताए तब सबसे पहले उन्होंने ये यूज किया था। ठीक है, एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट डेफिनेशन। इस डेफिनेशन का मीनिंग क्या है? रियल नंबर इज अ वैल्यू ऑफ कंटीन्यूअस क्वांटिटी दैट कैन बी रिप्रेजेंट अ डिस्टेंस अलोंग अ लाइन। ओके, all the real numbers there is a line of infinite distance. Okay, it is called the number scale. 0 1 2 3, you can just enlarge it, 4 5 6 till infinite it will go. Okay, here in the same way -1 -2 -3 -4 -5 -6 and minus infinite it will go. Is it clear? All the numbers what you have studied, exactly क्या है रियल नंबर? मैं एक छोटा सा ग्राफ छोटा सा एक डायग्राम बना रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सी, इट इज जस्ट अ सर्कल ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। द नंबर्स इंक्लूड्स आर। कौन से नंबर इंक्लूड है इसमें? देखिए, इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है एंड सो ऑन। इज इट क्लियर? दिस इज जस्ट अ स्मॉल बॉक्स। इस बॉक्स को मैं थोड़ा सा और यहां से इंक्रीज कर रहा हूं एंड आई एम जस्ट एडिंग 0 in it. Okay, so it will become whole numbers, है ना? दिस इज अ बॉक्स ऑफ होल नंबर्स। अब देखिए, इस बॉक्स को मैं थोड़ा सा यहां से और बढ़ा दिया मैंने। ठीक है, एंड दिस साइड ऑफ बॉक्स आई हैव रिटन नेगेटिव नंबर्स लाइक -1 -2 -3 एंड ऑल। ओके, सो ये नेगेटिव इंटीजर से हैं, z माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड दैट इंटायर ब्लू बॉक्स इज कॉल्ड एज z। ये पूरा ब्लू बॉक्स जो है z है। ये स्मॉल जो बॉक्स है ये z माइनस है। ये सारे बॉक्स जिसमें इंक्लूड हैं नेगेटिव नंबर्स
पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड जीरो, दैट ऑल इंक्लूडेड इन z. ओके, अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस इन द सेंस रेशनल नंबर्स. ओके, ये हो गया इंटीजर है ना z. नाउ z नॉट मीन्स इंटीजर्स, नॉन इंटीजर्स आई एम इंक्लूडिंग. तो नॉन इंटीजर्स क्या हो गया 7/2 और 7/5 है ना, या 7/10. ये क्या है टर्मिनेटिंग है जिसमें 2 हो या 5 हो और 2 5 दोनों हो है ना. 13/80, 80 में भी 2 और 5 दोनों है ना. या फिर 7/3 जिसमें इससे अलग हो, या फिर 5/9 ये कुछ अलग है. ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग है और ये टर्मिनेटिंग है. तो ये जो है ये इस सर्कल को इतना बड़ा करते हैं और ये पूरा सर्कल हो गया Q, दैट इज रेशनल नंबर. इसी के इस तरफ अगर मैं एक अलग सर्कल बनाऊं Q0 का. ओके, Q0 का जो सर्कल है उसमें √2 है, उसमें √3 है, उसमें पाई है, उसमें E है. ये सारे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रेकरिंग है, ये सारे नंबर यहाँ आते हैं. जैसे ये 7/3 एंड 5/9 ये ऐसे बनेंगे 1.333 बार है ना. ये जो नंबर है ये बनेंगे 1.25. ओके, यहाँ जो नंबर है वो ऐसे हैं 1.20, 200, 200, 200, 4 टाइम्स एंड सो ऑन. मतलब ये चलते जा रहे हैं बट रिपीट नहीं हो रहा है. ओके, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रेकरिंग, दैट काइंड ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड द इर्रेशनल नंबर्स. ये रेशनल हो गए, वो नॉन रेशनल हो गए, इर्रेशनल हो गए. अगर मैं इस पूरे को एक बॉक्स में बंद करता हूं तो ये बॉक्स जो है, ये बॉक्स इज कॉल्ड रियल नंबर एंड ऑल दीज नंबर्स आर ऑन दैट नंबर लाइन. अब आप कहेंगे ये कहाँ है, देखिए √2 कहाँ है, वेयर इज √2. सी दैट 1, सपोज 1, इस 1 लेंथ को मैंने, ये भी 1 लेंथ है और ये भी 1 लेंथ है, दिस इज √2. यू कैन बेटर अंडरस्टैंड. अब अगर आप 90 डिग्री का एक एंगल यहाँ बनाते हैं है ना, और यहाँ पे एक 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हैं, देन आफ्टर यू आर जस्ट ज्वाइनिंग दिस विद दैट, देन दिस विल बी √3. अगर यहाँ पे फिर आप 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर इसको ज्वाइन करते हैं यहाँ, सो दिस विल बिकम √4. फिर यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, फिर 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर ज्वाइन करते हैं, इट विल बिकम √5. ऐसे करके पूरा एक सर्कल बनाइए √17 तक. ठीक है, दिस इज द टास्क. इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट स्पाइरल. क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर रूट स्पाइरल. ठीक है, स्पाइरल टिल √17. ड्रॉ द, ये आपका असाइनमेंट है, स्क्वायर रूट स्पाइरल टिल √17. √17 तक का ड्रॉ कीजिए. तो √2 है, √3 है. यहां से अगर मैं, यहाँ पे मैंने मेरे कंपास का ओरिजिन है और यहाँ से मैं जो लाइन ड्रॉ करूंगा तो मुझे √2 मिलेगा. ओके, यहाँ कहीं मुझे यहाँ मिलेगा √2 है ना. ये 0.5 है, 1.5 है, यहाँ पे √2 है. ठीक है, यहाँ अगर मैं कहीं देखता हूँ तो सपोज ये 2.5 है, यहाँ कहीं देखता हूँ तो √3 मिलेगा मुझे है ना. यहाँ कहीं देखता हूँ तो E मिलेगा, E, that E Euler's constant, that Euler's constant is between 2.5 and 3. और बिल्कुल 3 के पास में अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ मुझे पाई मिलेगा. ठीक है, यहाँ कहीं पाई है ना. They can be represented on the number line definitely. ये भी मैंने आपको ये बताया √2, √3 ये क्या है. और अगर सपोज 7/5 देन 7 तक के नंबर के 5 इक्वल पार्ट्स कीजिए. फर्स्ट पार्ट विल बी 7/5. तो ऑल द नंबर्स आर देयर ऑन द नंबर लाइन एंड दे आर जस्ट रिप्रेजेंटिंग अ डिस्टेंस. दे आर रिप्रेजेंटिंग अ डिस्टेंस. सारे नंबर के रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक डिस्टेंस. दिस इज द रियल नंबर. ये है रियल नंबर चार्ट. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हाट डू यू मीन बाय रियल नंबर्स. तो रियल नंबर इज अ वैल्यू ऑफ कंटिन्यूअस क्वांटिटी that can be represent a distance along a line. प्लीज स्क्वायर रूट स्पाइरल मत बनाना भूलिएगा. ठीक है, तो आई होप यू विल डू दैट. देन आफ्टर यूक्लिड्स लेमा पढ़ा हमने. ठीक है, मैं थोड़ा सा आप इसको
ये एक्सप्लेनेशन हो गया. नाउ आई एम जस्ट मेकिंग अ चार्ट ऑफ रियल नंबर्स का एक चार्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए. एंड देन आफ्टर जस्ट एक पेज ऐसा जिसपे पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो गया हो. एक पेज बना लेते हैं हम, ठीक है. प्लीज ड्रॉ दैट पेज. उस पेज को बनाइए आप, है ना. यहाँ देखिए, ये रियल नंबर्स हैं. अब हम इस चार्ट को सीधा बना रहे हैं क्योंकि अब हमको सब पता है. रियल नंबर्स, ओके. द सेट ऑफ रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, है ना. अब इस रियल नंबर के दो सबसेट हैं. कौन कौन से दो सबसेट हैं? एक तो Q है ना, दैट इज रेशनल नंबर्स, ओके, डिनोटेड बाय Q. एंड irrational numbers denoted by QC, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ Q, ओके. अब देखिए रेशनल नंबर में क्या आ गया. रेशनल नंबर फिर दो टाइप के हैं. एक तो हैं इंटीजर्स और एक है नॉन इंटीजर्स, है ना. इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स सेट इज डिनोटेड बाय Z. नॉन इंटीजर सेट इज डिनोटेड बाय ZC, Z नॉट, ओके. अब यहाँ देखिए इंटीजर नॉन इंटीजर्स फिर दो टाइप के हैं. कौन से? वेरी फर्स्ट रेशनल नंबर की डेफिनेशन है ऑल द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0. तो जब Q इज इक्वल टू 1 हुआ तो ये इंटीजर्स बन गए. व्हेन Q इज नॉट इक्वल टू 1 हुआ तो ये नॉन इंटीजर बन गए. अब अगर ये Q 2 की पावर m और 5 की पावर n है, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो 2 और 5 का मल्टीपल है, तो दिस विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर. टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स टर्मिनेटिंग हो जाएंगे. 1.25, 2.25, 8.125 इस तरह के नंबर निकलेंगे, है ना. और इफ Q इज नॉट इक्वल टू 2 to the power m, Q इज अदर देन 2 to the power m and 5 to the power n, 2 और 5 को छोड़ के और भी कुछ है Q, तो क्या हो जाएंगे? ये बनेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग. नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, ओके. नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग कैसे रहेंगे? 1.3 बार, 2.63 बार, 1.8259 बार, ठीक है. इतना रिपीटेशन होगा, कितनी भी डिजिट रिपीट हो सकती है. तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग. और यहाँ जो है इरेशनल नंबर, ये थर्ड आएंगे उसी की, जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग. ये जो होंगे ये इरेशनल नंबर्स होंगे. ये कौन से होंगे? √2 का वैल्यू निकाल के देखिए आप, √3 का वैल्यू निकाल के देखिए, पाई का वैल्यू निकाल के देखिए, ई का वैल्यू निकाल के देखिए. पाई या पाई का कोई भी डेरिवेटिव इरेशनल है, ई इरेशनल है. लेकिन मैं यहीं पे बता दूं आपको कि 22/7 यहाँ आएगा. 22/7 इज अ रेशनल नंबर. 22/7 रेशनल नंबर है. 22/7 हम नियरेस्ट वैल्यू पाई की देने के लिए यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा. अब इस सेट को हमने छोड़ दिया बीच में. इंटीजर्स जो है वो 3 टाइप्स के हैं. एक तो 0 है ना. एक Z प्लस है, इन द सेंस 1 2 3 4, है ना. इसका निक नेम है नेचुरल नंबर्स. निक नेम होता है ना आपका सबका घर का नाम, इसका भी घर का नाम है नेचुरल नंबर्स. ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. और यहाँ अगर देखें हम तो -1, -2, -3 एंड सो ऑन टिल -इनफाइनाइट, ये Z माइनस है. तो ये आपका पूरा नंबर सिस्टम है. सी दैट इट इज इंटायर नंबर सिस्टम. ये चार्ट से आप नंबर सिस्टम को समझिए. नेचुरल नंबर से चले, होल नंबर पे पहुंचे, इंटीजर्स पे पहुंचे, नॉन इंटीजर्स को इंक्लूड किया, रेशनल हो गया पूरा, इरेशनल को इंक्लूड किया, ये सारे नंबर मिला के रियल नंबर हो गया. ठीक है. इसके बाद ये हमारे चैप्टर का मेन ऑब्जेक्टिव था. इसको मैं यहाँ पे कुछ और जो पढ़ा है उसको एक बॉक्स में लिखूंगा.
देखिए पढ़ना हमको यही था, यहाँ से हमको ये वाला टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पूरा इजी आना चाहिए। इसके अलावा हमने पढ़ा यूक्लिड्स लेमा, ठीक है। तो यूक्लिड्स लेमा क्या है? यूक्लिड्स लेमा आपको सबको पता है ना, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज लाइंग बिटवीन 0 एंड B, ठीक है। ये यूक्लिड्स लेमा था। HCF ऑफ n1 n2 इज इक्वल मल्टीप्लाइड बाय LCM ऑफ n1 n2 इज इक्वल टू n1 इंटू n2। ये फार्मूला देखा हमने, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। बाकी सारी चीजें इसी में इंक्लूडेड हैं, दैट वाज ओनली द थिंग। नाउ देन आफ्टर फ्रैक्शंस का HCF और LCM देखा हमने, HCF एंड LCM ऑफ फ्रैक्शंस। ओके, सो इस पूरे बोर्ड में आपको सारा चीज जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है वो इंक्लूड हो गया। माय डियर स्टूडेंट्स, पढ़ने का तरीका समझिए, मैथ्स पूरा समझा जाता है। जब हम पूरा समझ गए मैथ्स, तब फिर एक एक एक्सरसाइज को सॉल्व किया जाता है। अब आप फर्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट कीजिए, सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। कहीं भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करो। एज यू नो माय कॉन्टेक्ट नंबर इज ऑलवेज हियर, एज इट इज वन इंटीजर, ये एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर 8817774114, ठीक है। ये पॉजिटिव इंटीजर है तो मैंने यहाँ लिख दिया है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव इंटीजर दैट यू कैन सी। आप नोट कर लें, मुझे कॉल कर लें, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो। पूरा एनसीईआरटी का चैप्टर रियल नंबर आपको फिनिश करना है। एनटीएससी के लिए रियल नंबर में एक बार और फास्ट फॉरवर्डिंग लेक्चर लूंगा। देयर विल बी ओनली वन लेक्चर, वो लेटर लूंगा। अभी पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट से। सब्सक्राइब करो चैनल को, ऑर्डर से लेक्चर नंबर 1 2 3 4 देखिए, वर्कआउट कीजिए, काम कीजिए उतना, और फिर आप अपना सिलेबस फिनिश कीजिए। समझ में आया? CW कंप्लीट होना चाहिए। HW में क्वेश्चंस कीजिए या NCERT CW में कीजिए। HW में अदर रेफरेंसेस अगर आप सॉल्व करना चाहें तो। वैसे तो NCERT में से ही पूरा आता है, लेकिन क्वेश्चंस हमारे पास और होना जरूरी है। प्रैक्टिस शीट्स चाहिए, प्लीज कॉल मी, आई विल प्रोवाइड यू द प्रैक्टिस शीट। लेक्चर चैप्टर नंबर 1 की प्रैक्टिस शीट जिन जिन बच्चों के मेरे पास कांटेक्ट है उनको मैं आज ही पहुंचा दूंगा। इज इट ओके? ओके, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।